Okay, so a very good evening to all of you and welcome to today's legal session. Today I am going to take up one important legislation that is with regard to the protection of children from sexual offenses, POCSO law. We are going to deal with, and I am going to deal with this law in a comprehensive manner, and we will be comparing the law with the Indian Penal Code also, and I will be comparing this law with the Juvenile Justice Act, and you will be getting a holistic view how the law operates, what are the provisions, and what is the present scenario, what are the latest case laws, and you will be amazed to know that there are very latest judgments which talks about the jurisprudence and which delve into the jurisprudence of this law. So without wasting the time, let's start with POCSO, Protection of Children from Sexual Offenses. So, as the name suggests itself, that this law is for the purpose of protecting the children, and the children has to be protected from sexual offenses. So, what was the need of this law? Because we also had the Indian Penal Code. हमारे पास Indian Penal Code था जो एक criminal law है. Basically, this is a criminal law. ठीक है? It gives punishment to those people who commits sexual offenses on the children. ठीक है? Those who are wondering why today is not maths class, as sir has messaged that today is maths class. So there is sudden change in the plan. Ma'am has to go somewhere. So therefore, I am taking the class today, and you will be enjoying this class, and I will be taking up latest judgments also, and you will see how the law act in a practical manner. Okay, coming back to it. We had Indian Penal Code also. Today we have भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, भारतीय न्याय संहिता है हमारे पास. तो हमारे पास सेक्सुअल ऑफेंसेस को डील करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस इंडियन पिनल कोड के अंदर भी थे. कौन कौन से थे प्यारे बच्चों? हमारे पास अगर हम बात करें इंडियन पिनल कोड की, अगर हम बात करें तो वी हैड सेक्शन 376, दैट इज रेप. तो हमारे पास रेप का सेक्शन था हमारे पास. देन we had section 354, that is outraging the modesty of the woman. Outraging the modesty of the woman. Outraging the modesty of the woman. Then we had many other sections also. 354, capital A, capital B, C, D. These offenses were related to voyeurism. Voyeurism पता है? Voyeurism किसको बोलते हैं? Voyeurism means secretly looking at someone, like किसी डोर के होल से चेक करना किसी को, और सीक्रेट कैमरा लगा के रखना. तो हाँ जी, यस, ठीक है. तो वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब पीछा करना. ठीक है, तो ये सारे ऑफेंसेस 354 कैपिटल ए बी सी डी इनमें एडेड है. अभी वी विल डू दैट. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू विद आईपीसी. जस्ट टेलिंग यू कि आईपीसी के अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंसेस हमारे पास ऑलरेडी थे. देन वी हैड सेक्शन 509. 509 is insulting the modesty of the woman. Insulting the modesty of the woman. Insulting the modesty of the woman. So, rape was there, outraging modesty of the woman was there, insulting the modesty of the woman was there, and we have lot of these offenses. इसको थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूँ. ठीक है, देन आई विल बी शिफ्टिंग ओवर टू द पॉक्सो. देन यू विल नो व्हाई देयर वाज नीड टू इनेक्ट पॉक्सो. पॉक्सो क्यों इनेक्ट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी. फिर हम देखेंगे कि कब आया ये लॉ. 2012 में आया. 2012 के अराउंड एक गैंग रेप हुआ था दिल्ली में, निर्भया गैंग रेप. Nirbhaya gang. She was raped by 5 persons, and she was brutally raped, and she was killed also, in the sense she was murdered also. And an iron rod was inserted into her vagina, and her intestines were put ना वो pulled out from her body. तो उसके intestines pull out कर ली थी उन्होंने, मतलब perpetrators जो थे. And all of them, they are hanged now. ठीक है, they are dead. And one was the juvenile. एक कौन सा था उसमें? जुवेनाइल था, जिसकी एज कितनी थी? 18 साल से कम थी. तो ही इज लिविंग हिज लाइफ टुडे. ठीक है, वो उसने थोड़ी सी सजा जो अपनी करी, एंड ही इज आउट नाउ. सो वी आर लुकिंग एट
व्हाई वी नीडेड टू enact पॉक्सो, पॉक्सो को इनेक्ट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ गई, पॉक्सो को इनेक्ट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ गई? तो प्यारे बच्चों, जो ये रेप की डेफिनेशन है या रेप का सेक्शन है, इट इज जेंडर स्पेसिफिक, इट इज जेंडर स्पेसिफिक बिकॉज if you will read the section at home, घर जाके पढ़ना, अभी आईपीसी नहीं मैं पढ़ा रहा, if you read the section at home, it talks about when a man rapes a woman, ठीक है, क्या होता है, when a man commits a sexual intercourse with a woman, so the word used is woman, so it is a gender specific, whereas POXO is gender neutral, gender neutral मतलब एक बॉय के साथ, अगर एक बॉय के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो वो रेप में कवर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रेप के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, मैन commits sexual intercourse with a woman. So what about if a male male against a male a sexual offense has been committed, तो वो कहाँ जाएगा, उसको तो रेप में हम फॉल ही नहीं करवा रहे, क्योंकि रेप का सेक्शन ही यही कह रहा है कि वुमेन के अगेंस्ट ही हो सकता है। तो बताइए, इट इज जेंडर स्पेसिफिक और जेंडर न्यूट्रल? इट इज जेंडर स्पेसिफिक। तो पॉक्सो, एक एक रीजन समझते जाओ कि पॉक्सो क्यों आया। पॉक्सो एक जेंडर न्यूट्रल है, वो बच्चा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जिस दोनों में से किसी के खिलाफ भी अगर सेक्सुअल ऑफेंस होंगे तो जिसने भी किया है परपिट्रेटर, ही विल बी punished, he or she will be punished, in fact he or she will be punished, getting my point? So this was a limitation in this definition, ये एक limitation थी इसके अंदर। then outraging the modesty of the, here again the word used is women, outraging the modesty के अंदर पता क्या है, यहां पर 376 के अंदर penetration is involved, क्या है, penetration, penetration is involved in rape, when a man inserts his penis into the vagina of a woman without her consent, that is called as rape. But in outraging the modesty of the woman, no penetration is involved, but a physical contact is involved, physical contact which is suggestive of with sexual intention, ठीक है, a physical contact which is suggestive of sexual intention, like a famous case was there, KPS Gill versus Rupan Deol Bajaj, कौन सा था, KPS Gill versus Rupan Deol Bajaj। KPS Gill जो थे वो he was the former KPS Gill was the former DGP of Punjab also, and very infamous officer. He was known for his role in 1984, and after 1984 जो सिख यूथ जो थे वो डिसअपियर्ड हुए थे, एंड उनके ऊपर एलिगेशन थे ऐसे कि इनकी कमांड के अंदर बहुत सारे मतलब सिख यूथ जो बच्चे हैं उनको मारा गया था। तो एनी हाउ, तो केपीएस गिल वर्सेस रूपन देओल बजाज, उसके अंदर व्हाट हैपेंड, केपीएस गिल जो थे एक पार्टी के अंदर, रूपन देओल बजाज शी वाज आल्सो एन आईपीएस ऑफिसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आईपीएस ऑफिसर, एंड केपीएस गिल वाज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर इन दैट पार्टी। तो केपीएस गिल जो है वो जहाँ रूपन देओल बजाज बैठे हुए थे, तो ही वेंट देयर एंड बिल्कुल आगे जाके बिल्कुल गैप, बॉडी के बीच में गैप खत्म करके ऐसे खड़ा हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी चेयर पीछे किया एंड शी वेंट समवेयर एल्स, किसी और जगह पे बैठ गई, एंड अगेन दिस गाय फॉलोड हर देयर। तो वहां पर भी जाके इसने कुछ ऐसा ही किया, तो फिर वहां से जब वो उठने लगे अगेन, तो ही पैटेड ऑन द पोस्टीरियर ऑफ रूपन देओल बजाज, ठीक है, पैटेड मतलब ऐसे पोस्टीरियर पे पीछे ऐसे मारा। So this is what? This is outraging the modesty of the woman. It involves a physical touch, which is suggestive of a sexual intention. Getting my point? So outraging modesty में penetration is not involved, but other kind of acts, any physical contact, any kind of these contacts which are suggestive of sexual intention. Getting my point? So this section deals with this outraging the modesty. Basically, modesty क्या होता है? आप मुझे बताइए क्या होता है modesty? Modesty of a woman किसको बोलते हैं हम? You all are women. What is outraging the modesty of the woman? Modesty means dignity. Dignity. Dignity means every woman deserves respect. Every woman deserves to be respected and to be protected, in the sense that no one can violate her modesty. Modesty basically relates to, in a sense, it deals with the sex of the female. Basically female sex, male sex and female sex. So female sex is the modesty of the woman. So if anyone does something, any physical touch which is connected with the sex of a female, like touching the sexual organs or anything, so it amounts to outraging the modesty of the woman, because it does not involve penetration,
but it outrages the modesty of the woman. वैसे ही मैंने एक केस देखा था जहाँ पर एक लेडी, देयर वाज एक शॉप थी वहाँ पर, तो शॉप बहुत थोड़ी सी स्पेस कम थी, तो एक पर्सन ने क्या किया कि वुमन वाज शी वाज स्टैंडिंग देयर, तो उसने क्या किया कि उसने जानबूझ के ऐसे टच करके वुमेन के, जो वुमेन ऐसे खड़ी थी उसको टच करके ऐसे निकला, तो शी गॉट आउटरेज्ड। तो उसने, तो ऐसा ऐसे इंसिडेंट्स आप देखते होंगे कि ऐसा होता रहता है, तो इट इज एन ऑफेंस, ठीक है। नाउ coming to the insulting the modesty of the woman, insulting the modesty of the women means it does not involve any touch, it does not involve any penetration, penetration की तो बात ही नहीं आती। insulting the modesty of the woman just means words, gestures, ठीक है, कुछ words बोलना। तो लाइक ऐसे पहले बहुत ईव टीजिंग होती थी, ईव टीजिंग में लाइक ऐसे लोग कमेंट्स पास करते थे वुमेन्स के ऊपर, ठीक है, विच डील्स विद द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, modesty of the woman basically, which insults the modesty of the woman, women की insult, humiliation with regard to the female sex, ऐसे कमेंट पास करना which is related with the female sex, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर, या कोई ऐसे जेस्टर्स पास करना, या ऐसे कोई वर्ड्स, ठीक है, पास करना। तो यहाँ पर देखा, दिस इज बाय वर्ड्स, बाय जेस्टर्स, दिस इज outraging, this is rape and all that, but all of these you can see that these are gender specific, these are not जेंडर न्यूट्रल। उस टाइम पे हमारे सोसाइटी के अंदर चिल्ड्रंस के ऊपर इतने ऑफेंसेस हो रहे थे, मथुरा रेप केस हुआ जिसमें पुलिस स्टेशन के अंदर एक माइनर का रेप किया गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस, देयर वाज आउटरेज, देयर वाज आउटक्राई इन द पब्लिक, लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई इन द पब्लिक, एंड अ नीड वाज फेल्ट दैट वी शुड हैव अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि भाई एक यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन पास की थी, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। क्या था? कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ, राइट्स ऑफ, ठीक है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन। This convention was passed, you can note down that this it was passed, just give me 1 minute, united nation united nation convention on rights of the child, and it was passed in on signed by the General Assembly and passed by the General Assembly on 11th December 1992. 11th December 11th December 1992. It was signed by India, it was ratified by India, तो इंडिया ने भी साइन करी कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड, तो इंडिया ने भी साइन करा, एंड इंडिया को इस कन्वेंशन के अंदर चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करना था, एंड देयरफॉर इंडिया आल्सो पास्ड अ लॉ, बट इन 2012 में ये पास हुआ। नाउ ये तो आईपीसी का हमें देखा जी, ये था आईपीसी का सारा जो सेक्शन थे, तो जो अच्छे से डील नहीं कर पा रहे थे चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस है। नाउ कम्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। पहले देखिए इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है, बेसिकली पास हुआ था ये 19 जून 2012 को, बट ये एनफोर्स में आया था 14 नवंबर 2012, चिल्ड्रन डे वाले दिन। तो चिल्ड्रन को क्या दिया था? एक गिफ्ट दिया था कि देखो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, लॉ लेके आए हैं। बेटा यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके अंदर सारी कंट्रीज क्या हैं, उनकी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन की। इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कन्वेंशंस पास होती हैं, अगर कंट्रीज उनको रेटिफाई करती हैं, साइन करती हैं, तो उस केस के अंदर उन कंट्रीज को उन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक इंटरनेशनल कह लो कि लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। क्या है? यूएन बाइंडिंग ट्रीटी है। तो अगर किसी कंट्री ने साइन किया है विलिंगली, अपनी मर्जी से, तो फिर उन उन उस कन्वेंशन के अंदर जो गाइडलाइंस है, जो है राइट्स जो है, उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे ना, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे ना, तो आप अपनी कंट्री में लॉ बनाएंगे या नहीं? ठीक है, ये ना इंटरनेशनल लॉ जब आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लॉ में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक मोनोइस्टिक, एक डुअलिस्टिक। मोनोइस्टिक में क्या होता है कि अगर किसी कंट्री ने यूएन की ट्रीटी को साइन कर दिया, ऑटोमेटिकली वो बाइंडिंग हो गई, कुछ भी लॉ पास करने की जरूरत नहीं है। डुअलिस्टिक में क्या होता है कि कंट्री डुअल सिस्टम फॉलो करती है, एक तो साइन किया वहां जाके, और उसको
लागू करने के लिए अपनी कंट्री के अंदर भी क्या पास करना पड़ता है, पार्लियामेंट के थ्रू लॉ। इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, डुअलिस्टिक। इंडिया ट्रीटी भी साइन करेगी और ट्रीटी ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हो जाएगी, ट्रीटी को अप्लाई करने के लिए द पार्लियामेंट हैज टू पास द लॉ। तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया पॉक्सो लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट why do we by what authority the parliament has passed this law? Because हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर शुड बी इक्वालिटी। क्या कहता है? देयर शुड बी इक्वालिटी, सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। तो चिल्ड्रन को क्यों अलग से ट्रीट कर रहे हो और उनको क्यों अलग से आप लॉ बना रहे हो उनके लिए? चिल्ड्रन को क्यों अलग से ट्रीट कर रहे हो? सबके लिए बना दो, फिर अडल्ट के लिए भी बना दो। अडल्ट मेल के लिए नहीं बनाओगे? यहाँ तो माइनर मेल कवर्ड हो रहा है ना, चाइल्ड कवर हो रहा है ना। तो चाइल्ड की डेफिनेशन पता क्या है इसके अंदर? हु इज लेस देन 18 years old। क्या है? जो 18 साल से कम है। लेट्स सपोज अ गाय हु इज 20 years old, उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो जाए, देन व्हाट? आईपीसी में यू हैव सीन दैट इट इज अ जेंडर स्पेसिफिक, क्योंकि उसके अंदर तो मेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्लियर देयर वाज अ सेक्शन इन आईपीसी 377 अननेचुरल ऑफेंसेस। पहले क्या था हमारे पास? 377। अब नया लॉ जो आ गया उसके अंदर से वो डिलीट कर दिया है। अभी एक केस मैंने देखा जिसमें एक बॉय के ऊपर ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, तो पुलिस ने बोला कि सर हम सेक्शन कौन सा लगाएं, हमारे पास सेक्शन ही कुछ नहीं है। सेक्शन कौन सा? एफआईआर किस में कट करें, क्या सेक्शन है? तो उसके साथ सोडोमी हुई, ठीक है, एनल, किसी ने फोर्सफुल एनल सेक्स किया होगा, तो कौन सा सेक्शन लगाया पता है? हर्ट का। हर्ट का सेक्शन, हर्ट का सेक्शन तो लगता है कि किसी को थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया, क्योंकि हमारे पास दैट आई डोंट नो। एंड इसके ऊपर तो बहुत चर्चा भी हो रही है कि पार्लियामेंट ने ये गलती करी है कि 377 नए लॉ के अंदर से डिलीट कर दिया आपने, जो कि अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता था। बेस्टियलिटी भी उसके अंदर कवर्ड था कि सेक्स विद एनिमल, ठीक है, एनिमल्स के साथ, तो वो भी कवर्ड था। तो बेस्टियलिटी भी चले, क्योंकि ऐसे बेस्टियलिटी जैसे बहुत सारे चीजें हो रही हैं इंडिया के अंदर, बहुत केसेस हैं एनिमल्स के साथ लोगों को, मतलब इतने सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं। तो अब अगर हम ऐसे बात करेंगे, मैं चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं ये कह रहा था आपको कि चिल्ड्रन को अलग से क्यों ट्रीट किया, सबके लिए बना देते फिर भी एक 18 साल से ऊपर मेल है उसके लिए भी बना देते, अलग से क्यों ट्रीट कर लिया? और अगर अलग से ट्रीट कर भी रहे हो तो दैट मींस यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, क्या बात करता है? सब बराबर है, बोलो सब बराबर है, तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की क्या जरूरत है चिल्ड्रन को? तो उन्होंने बोला चिल्ड्रन दे आर वल्नरेबल। क्या है ये? दे आर। और हमारे पास एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। क्या है आर्टिकल 15 क्लॉज? इट टॉक्स, इट सेज that nothing can stop the state from making special provisions for children and women। किसके लिए बना सकते हैं? चिल्ड्रन एंड, तो चिल्ड्रन एंड वुमेन दे आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट क्लास। कैसे ट्रीट किया जाता है उनको? एज अ, तो उनके लिए आपको इंडिया में भरपूर लॉ मिलेंगे, वुमेन्स के लिए बहुत भरपूर लॉ मिलेंगे। आप देखेंगे कि मेल के लिए तो राइट्स हो या ना हो, वुमेन के लिए लॉ भरपूर है। और अगर मेल ये क्वेश्चन उठाए, जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, भाई एक माइनर बच्चे का गार्जियन कौन होगा? तो उसमें हमारे पास एक सेक्शन है हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट में, दैट फादर of the child will be the guardian and after him the mother will be the guardian। तो इसको क्या हुआ, वुमेन्स ने चैलेंज कर दिया इंडिया में। उन्होंने बोला सर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी and in this law parliament has given preference to the male। how can the father be the guardian and why after father the woman can be the guardian? So it is violative of article 14 right to equality। इसको आप ठीक करिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आफ्टर फादर का मतलब ये नहीं कि आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। उन्होंने बोला आफ्टर फादर मींस इफ फादर इज अवे एट वर्क, घर पे नहीं है, तो हु इज द गार्जियन? मदर इज द गार्जियन। तो यू आर आल्सो द गार्जियन एट द सेम टाइम इन द सेम डे आल्सो, बिकॉज फादर तो काम पे जाते ही हैं, तो पीछे से गार्जियन कौन हो गया? मदर। फादर फादर टूर पे गए हैं तो कौन हो गया? मदर हो गया। तो उन्होंने बोला अब ठीक है, बट व्हाट अबाउट कि वुमेन के फेवर में इतने सारे बना रखे हैं, तो हम जब चैलेंज करने जाएंगे, मेल्स अगर हम चैलेंज करने जाएं कि दिस इज इनइक्वालिटी, व्हाई हैव यू डन दिस, ये अनकॉन, तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है। क्या है हमारे पास? आर्टिकल 15 क्लॉज 3। इट टॉक्स अबाउट स्पेशल राइट्स फॉर द स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर चिल्ड्रन। तो आप यहाँ पर पढ़िए, इस लॉ का स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, प्लीज देखिए जरा। यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सीडेड ऑन 11 दिसंबर 1992। किसको साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ
ये लिखवाया ना मैंने आपको, साइन किया। देन आप आगे देखिए प्लीज। Whereas clause 3 of article 15 of the constitution empowers the state to make special provisions for the, तो हमने बना दिया लॉ, फिर वो कह रहे हैं हमने बना दिया लॉ उनके लिए, करेगा पॉइंट। सो दिस इज द बैकग्राउंड, लॉ बन गया जी। नाउ लॉ बन गया, नाउ लेट्स सी द सेक्शंस। चैप्टर 1, चैप्टर 1 जो है ये कहता है इसका नाम क्या होगा। देखो क्या कह रहा है ये, शॉर्ट टाइटल। जब भी घर पे कोई बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण करते हैं कि नहीं, बच्चे का नाम रखते हैं कि नहीं रखते, तो जब कोई लॉ पास करते हैं उसका नाम रखोगे कि नहीं रखोगे, तो यही है बस, कह रहे शॉर्ट टाइटल क्या है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2000। तो नाम बता दिया उन्होंने, क्या बता दिया नाम, पॉक्सो। इसका नाम क्या रखेंगे हम, पॉक्सो। पॉस्को मत बोल देना, पॉक्सो, ठीक है। आगे फिर कह रहे हैं एक्सटेंट, ये लॉ लगेगा कहाँ पर, कहाँ लगेगा ये लॉ, इंडिया में तो लगेगा। तो क्या लिखा है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर अब हट गया है, क्या हो गया ये, दिस हैज बीन रिमूव्ड। पहले आर्टिकल 370 था ना, आर्टिकल 370 मोदी जी ने हटाया नहीं, 370, इट गिव्स स्पेशल स्पेशल प्रिविलेज और स्पेशल पावर्स टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले। तो आर्टिकल 370 इज रिमूव्ड नाउ। सो पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर पे ऊपर पार्लियामेंट जो लॉ पास करती थी वो अप्लाई नहीं होते थे, जम्मू कश्मीर के ऊपर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जो पास करती थी वही अप्लाई होते थे। तो जैसे इंडिया पे इंडियन पीनल कोड अप्लाई होता था, जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता था रणवीर रणवीर पीनल कोड। क्या अप्लाई था, रणवीर पीनल कोड, अलग लॉ थे उनके। तो इंडिया जो मर्जी लॉ पास करते रहे उनके ऊपर नहीं लॉ अप्लाएंगे, वो अपने हिसाब से लॉ अपने ऊपर लगाएंगे जो उनको अच्छा लगता है। बट अब ऐसा नहीं है, अब आर्टिकल 370 इज रिमूव्ड नाउ, होल ऑफ द इंडिया पे ये अप्लाई करेगा। दिस वाज ये जो अप्लाई हुआ था 31 अक्टूबर 2019। ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इस दिन पास हुआ था, इस दिन से सारे लॉ जो इंडिया के हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई करने स्टार्ट हो गए थे। देन इट केम इनटू फोर्स, आई टोल्ड यू दैट इट केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट, 14th नवंबर 2012, चिल्ड्रन डे के बाद, चिल्ड्रन डे वाले दिन। ओके नाउ अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसमें हम डेफिनेशंस देखते हैं, डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन हमें बताते हैं इसमें ना, देखिए बेसिकली इसमें 5 काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस आते हैं, 5 तो उससे ज्यादा ही हैं थोड़े से। और एक तो पोर्नोग्राफी से भी रिलेटेड है, पोर्नोग्राफी के ऊपर अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस हरीश, एक केस आया लेटेस्ट। उसके अंदर क्या हुआ कि भाई उस इसमें हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें कहता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप अपने पास फोन में रखेंगे तो जेल है। तो एक बंदे के पास वैसे ही वो केस था उसमें, तो उसमें बंदे के मोबाइल में क्या मिली, चाइल्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। उसको पकड़ लिया, भाई पकड़ लिया तो ये ऑफेंस है, तो इसके ऊपर कार्रवाई हुई जो होनी थी। तो वो कोर्ट में जाके कहता है सर आई वॉज इग्नोरेंट अबाउट द लॉ, क्या था, आई वॉज इग्नोरेंट अबाउट द लॉ, सर मुझे नहीं पता था इंडिया में ऐसे पोर्नोग्राफी मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स द पोर्नोग्राफी विच इन्वॉल्व्स द चिल्ड्रन, जिसके अंदर चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। तो कोर्ट सेड, और वैसे भी हमारे लीगल जुरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज, ऐसे तो हर कोई बंदा मर्डर करने वाला, जैसा पता नहीं था मर्डर करना ऑफेंस है, जैसा पता नहीं था चोरी करना ऑफेंस है, एवरीवन विल से दिस, बोलो यस और नो। तो कोर्ट ने बोला इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इवन इफ यू आर नॉट अवेयर, तो आपको होना चाहिए इंडिया के लॉज के बारे में अवेयर, आपको होना चाहिए। आप अब अपने जानकार जो भी हैं मतलब सबको ये अवेयर करवाना कि भाई ऐसा चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर गलती से भी, कोर्ट ने तो यहाँ तक इलस्ट्रेशन दी हैं कि सपोज एक तो होता है पर्सन जिसने खुद ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओपन की, उसको वॉच किया, उसको डाउनलोड कर लिया, वो तो ऑफेंस है ही है। बट एक होता है कि कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप में लिंक किसी ने सेंड कर दिया, ठीक है, किसी ने लिंक सेंड कर दिया, क्या वो भी ऑफेंस होगा। कोर्ट ने बोला लिंक जैसे ही आपने ओपन कर लिया, ओपन करने, एक तो देखो दो एग्जांपल दी कोर्ट ने। कोर्ट ने बोला कि एक तो है कि एक पर्सन ने खुद ऑनलाइन जाके सर्च किया और सर्च करके उसको क्या करा है, वॉच करा है, इवन तो अभी डाउनलोड नहीं की है, क्या करा है, सिर्फ वॉच करा है। कोर्ट ने बोला कि ये पोजेशन है, क्या मानेंगे हम, ये पोजेशन, और एनीवन हु इज इन द पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इट इज एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस है, चाहे वो ये बोले कि मैंने डाउनलोड कहाँ करी, मैंने तो ऑनलाइन देखी है। कोर्ट ने बोला कि इट अमाउंट्स टू कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। देन अगर किसी ने, सेकंड एग्जांपल कोर्ट ने ली कि अगर किसी ने लिंक सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे, तो लिंक सेंड कर दिया, अब लिंक है हमें अंदर पता नहीं क्या है, आपको कैसे पता, किसी को कुछ भी नहीं पता, वो तो जब आप ओपन करोगे तभी पता चलेगा। तो कोर्ट ने बोला व्हेन दैट पर्सन ओपन द लिंक और उसको पता चल गया कि दिस इन्वॉल्व्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो आफ्टर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, 2-4-5 मिनट में पता ही चल जाएगा कि ये क्या चीज है। उसके बाद इफ दैट पर्सन कंटिन्यूज टू वॉच दैट
एंड इफ दैट पर्सन डू नॉट डिलीट इट, डिस्ट्रॉय इट, डिलीट करनी पड़ती नहीं, और रिपोर्ट नहीं की, रिपोर्ट करना भी जरूरी है, मैंडेटरी है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट नहीं करा ना आपने कि ऐसे ऐसे मेरे को किसी ने ये सेंड करिए, दैट इज, तो कोर्ट ने बोला कि अगर एक बार लिंक ओपन कर लिया आफ्टर रीजनेबल, अगर आपने उसको बंद नहीं किया और डिलीट नहीं किया और रिपोर्ट नहीं किया अथॉरिटीज को, इट अमाउंट्स टू पोजेशन। क्या माना जाएगा वो? पोजेशन माना जाएगा, और वो ऑफेंस बन जाएगा। अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस इन्वॉल्व है। तो इसमें पता कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? नंबर 1, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। क्या है पहला? पेनिट्रेटिव। अभी यहाँ पर सेक्शन आ जाएंगे, डोंट वरी। पहला कौन सा है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये फर्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंस है। दूसरा है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, उससे बड़ा एग्रावेटेड, उससे बड़ी फॉर्म। देन नंबर 2 है सेक्सुअल असॉल्ट, उसका बड़ा भाई एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। फिर है सेक्सुअल हैरेसमेंट, हो गए ना 5 तरह के। फिर एक है मेकिंग अ चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चे से चाइल्ड पोर्नोग्राफी करवाना, वो भी ऑफेंस है। और एक है चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसा मटेरियल, जैसी मूवी या कोई फिल्म अपने मोबाइल में पोजेस करना। ये ऑफेंसेस आपको यहाँ मिलेंगे। तो वो डिफाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब है, कह रहे हैं सेक्शन 5 में देख लो। तो कुछ डिफाइन तो किया ही नहीं, कह रहे जाके नीचे देख लो, चलो हम देख लेंगे। फिर कह रहे हैं एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का क्या मतलब है, कहते हैं सेक्शन 9 में देख लो जाके। तो देख लेंगे भैया, यहाँ तो कुछ बता नहीं रहे आप। देन आर्म्ड फोर्सेज सिक्योरिटी फोर्सेज का क्या मतलब है? अब आप बोलोगे आर्म्ड फोर्सेज का यहाँ पर क्या काम आ गया? आएगा, अभी बताऊंगा आर्म्ड फोर्सेज का क्या काम है। देन ये इंपॉर्टेंट है, ये बता रहे हैं चाइल्ड क्या है, बताइए। चाइल्ड मीन्स, यहाँ पर वर्ड देखिए जरा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या यहाँ लिखा है एनी फीमेल? क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड? एनी पर्सन मीन्स जेंडर न्यूट्रल, इट इन्वॉल्व्स, इट कंटेन्स बॉय एज अ मेल एंड अ फीमेल। एनी पर्सन, क्या लिखा है? बिलो द एज ऑफ 18 साल से जो नीचे है उसको हम क्या मानेंगे? चाइल्ड मानेंगे। चलिए ये भी हो गया हमारा। देन डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2F में देख लो जाके, देख लेंगे फिर हम, अभी कोई बात नहीं। अभी हम लेट्स मूव एट एंड लेट्स सी। देन ये कह रहे हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, कह रहे हैं सेक्शन 3 में देख लो जाके, तो देख लेंगे भाई, कुछ डिफाइन तो कर नहीं रहे हो आप। प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब है। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब सेक्शन 7 में देख लो। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब सेक्शन 11 में देख, कुछ नहीं बता रहे। तो फिर हम सीधे ही सेक्शंस पे चलते हैं, बोलो यस और नो। चले सेक्शंस पे, चलिए आइए अब हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2। यहां से अब आपके ऑफेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफेंस इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा PSA। क्या लिखूंगा इसे मैं? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ दैट इट इन्वॉल्व्स पेनिट्रेशन। क्या इन्वॉल्व है इसमें? पेनिट्रेशन इन्वॉल्व है। नाउ लेट्स रीड इट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहां पर वर्ड देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, प्लीज ध्यान से फोकस करिए। क्या लिखा है यहाँ पर? जब आप रेप की डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां लिखा अ मैन। क्या लिखा है वहां पर? अ मैन। क्या? अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। मैन रेप करेगा ना, वुमेन रेप कैसे कर देगी? मैन, तो वहां पर वर्ड क्या लिखा है? मैन। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है? सो दैट मीन्स, तो यहाँ पर अब जो, देखो जो विक्टिम था चाइल्ड, वो भी कह रहे हैं एनी पर्सन, और जो ये ऑफेंस करने वाला है इसका मतलब एक्यूज्ड, वो भी क्या है? पर्सन। मीन्स जो एक्यूज्ड होगी वो फीमेल भी हो सकती है और वो मेल भी हो सकता है, ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू कमिट, क्या लिखा है यहाँ पर? तो एक बंदा, हम बोलेंगे उसने, एक पर्सन ने, बंदा नहीं मैं बोलूंगा, एक पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है अगर, इफ कंडीशन, अगर उसने क्या किया है? ही, यहाँ पर नो डाउट वर्ड ही लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ही लिखा नो डाउट, बट यहाँ पर वर्ड लिख दिया ना पर्सन, तो यहाँ पर वो ही और ऐसे शी लिखेंगे तो हर्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, ही शी, यही से क्लियर हो जाता है कि वहां पर क्या लिखा है। और वैसे भी अगर आपको डाउट है तो एक केस है गौतम सुंदरी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि यहाँ पर ये द वर्ड पर्सन इन्वॉल्व्स फीमेल आल्सो। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर हेयर प्रोनाउन ही यूज्ड, ही इज यूज्ड, है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। पेनिट्रेटिव सेक्शन, ही penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra, anus of a child, or makes the child to do so with him or any other person.
तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी द डेफिनेशन इज वेरी ब्रॉड. अर्लियर द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट इन्वॉल्व ओनली पेनाइल वेजाइनल इंटरकोर्स. ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो यही होती थी, पेनाइल वेजाइनल इंटरकोर्स, तभी उसको सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता था. बट यहाँ पर आप इतनी ब्रॉड डेफिनेशन कर दी है दैट इफ दैट पर्सन penetrates his penis into the vagina or even into the mouth, urethra, anus of a child, child involves even a female, even a male. तो अगर ऐसा उसने किया है तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया फिर, penetrative sexual assault. And the word used here is to any extent. क्या लिखा है यहाँ पर, to any extent. That means complete penetration is not required. Even just touching these parts, even if the whole penetration is not done, it will amount to penetrative sexual assault. और आगे क्या लिखा है, और मेक्स द चाइल्ड, या उसने खुद नहीं ऐसा किया, बच्चे से ऐसा करवाया है, बच्चे से ऐसा करवाया. जैसे जैसे मान लो एक वुमेन एक मेल चाइल्ड से ऐसा करवा ले, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ भी करवा ले, तो वो भी फॉल करेगा. या फिर बच्चे को ही या एक फीमेल को ही बोला जाए, यू डू दिस थिंग विद मी, तो वो भी क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. या फिर टू डू दिस थिंग विद एनी अदर पर्सन, किसी और थर्ड पर्सन के साथ उसको मजबूर किया जाए कि ऐसा करो, तो वो भी क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. नाउ मूविंग अहेड, दैट पर्सन इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट. तो आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ पेनाइल पेनिट्रेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कह रहे हैं एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना into the part of the body, into a to insert any object, object insert करना, not being the penis, penis नहीं होना चाहिए, कोई object होना चाहिए, वो insert किया है कहाँ पर, into the vagina, urethra और anus. but note down यहाँ पर mouth नहीं है. अगर object mouth के अंदर insert किया है तो फिर वो penetrative sexual assault नहीं हो सकता. माउथ के अंदर अगर इंसर्ट किया, दैट हैज टू बी पेनिस. तो यहाँ पर माउथ वर्ड नहीं है. ऑब्जेक्ट इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ अ चाइल्ड, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, या बच्चे को ही बोलो कि बच्चा ही खुद इंसर्ट करे, और विद हिम और विद एनी अदर पर्सन, या किसी और पर्सन से, या फिर इंसर्ट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, अपना बॉडी पार्ट, कोई फिंगर इंसर्ट कर दी, वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ अ चाइल्ड. सो दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू व्हाट, पेनिट्रेटिव सेक्स. रेप की डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड के अंदर, रेप की डेफिनेशन यही है. सो डोंट बी अंडर द मिसकंसेप्शन कि रेप is only penile vaginal intercourse. No, even inserting the fingers or any parts of the body into the vagina, that is also rape. Even inserting any kind of object, that is also rape. ठीक है, तो रेप तो चलो ठीक है, रेप का नाम यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर रेप को क्या बोला गया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. नाउ मूविंग अहेड, इफ दैट पर्सन मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का ही बॉडी पार्ट मैनिपुलेट करके बच्चे के ही बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा दिया, वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस, अगेन यहाँ पर माउथ नहीं है, तो बच्चे का ही बॉडी पार्ट बच्चे की ही बॉडी में इंसर्ट करवाना, वो भी ये माना जाएगा, और वो रेप भी होता है. अगर एक वुमेन का ही बॉडी पार्ट वुमेन की बॉडी पार्ट में इंसर्ट करवाया तो वो भी रेप होता है. ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus of the child. और यहाँ पर क्या लिखा है, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, सो दैट इज आल्सो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. यहाँ पर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जजमेंट आई है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. यहाँ पर तो समझ में आता है, ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना, बच्चे का ही बॉडी पार्ट बच्चे के ही बॉडी पार्ट में इंसर्ट करवाया, बट यहाँ पर लिखा है मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड. तो यहाँ पर एक केस आया था, केस का नाम एक दिल्ली में भी आया था, एक साउथ इंडिया में आया था, केरला का केस था. दैट पर्सन व्हाट ही डिड, ही मेड दैट माइनर गर्ल टू स्टैंड एंड, वो मैं आपको जजमेंट ही दिखा देता हूँ, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. उसका नेम है,
चलो अभी मुझे नहीं मिल रहा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो केस अभी मैं बताऊंगा। इसको आगे चलो, आगे लिखा है, इफ दैट पर्सन अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस टू द वजाइना एनस यूरेथ्रा ऑफ अ चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू विद सच पर्सन दैट इज आल्सो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये रेप की डेफिनेशन में ऐसा ही है, रेप की डेफिनेशन, अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस वजाइना एनस। तो यहाँ पे देखो अप्लाइज टू द माउथ टू द पेनिस, तो ये फीमेल भी तो हो सकती है और ये मेल भी हो सकता है, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, या बच्चे से ही ऐसा करवाना, वो भी क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सो ये बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, ये एक ऑफेंस है, और इसके लिए सजा देखिए आप कितनी है। सजा जो है अब चेंज हो चुकी है, ये लॉ थोड़ा सा ना इसके अंदर 2019 में चेंज आया था, 2019 में चेंज आया था, आई विल टेल यू, 1 मिनट, 2019 में इसमें चेंज आया था। आप इसकी जो सजा है ना, वो आप नोट डाउन करिए, whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या है अब यहाँ पर, नॉट लेस देन 7 years। अब कितना हो चुका है, नॉट लेस देन 10 साल कम से कम सजा मिलनी है। जज साहब की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, जज साहब ये नहीं कह सकते कि मैं चलो 5 साल देता हूँ, 3 साल देता हूँ, नहीं। अगर ये किसी ने कोई एक्ट कर दिया ऐसा, तो मिनिमम कितनी सजा है, 10 साल तो मिनिमम सजा मिलनी मिलनी है। बट एक्सटेंड कितनी हो सकती है, बट मे एक्सटेंड टू, क्या लिखा है यहाँ पर, इम्प्रिजनमेंट फॉर, उम्र कैद भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन भी लग सकता है। इज दैट फाइन, बोलो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़े हम, नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, पनिशमेंट होगी हमारी, देन नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। क्या है, एग्रावेटेड, उसकी बड़ी फॉर्म, इसमें सजा भी ज्यादा होगी। अब एग्रावेटेड रह क्या गया, आपको क्या लगता है कि क्या एग्रावेटेड बच गया अब, जब एक हम कहते हैं कि थेफ्ट से रॉबरी हो सकता है। थेफ्ट होता है कि नॉर्मली मैं किसी के घर में गया या कहीं भी गया और मैंने चुपचाप उठाया और लेके चला गया। रॉबरी क्या होता है, रॉबरी में गया हूँ साथ पिस्टल चाकू लेके गया हूँ, और वो आया, उसको मैंने अटेम्प्ट किया या मार दिया या धमकी दी थी, और फिर वो पीछे हो गया, फिर मैं उठा के ले आया, ये क्या हो गया, उसका एग्रावेटेड फॉर्म। सिमिलरली एक होता है हर्ट, एक होता है ग्रीवियस हर्ट। हर्ट क्या होता है कि मैंने उसको नॉर्मली स्लैप किया या कुछ ऐसा किया, ग्रीवियस हर्ट उसका दांत तोड़ दिया, हड्डी तोड़ दी, बॉडी पे क्या आ गया, कट आ गया, तो ये तो एग्रावेटेड फॉर्म है ना, बोलो यस और नो। तो आपके साथ क्या होगा एग्रावेटेड फॉर्म, सारा कुछ तो कवर कर लिया, ऑब्जेक्ट कवर कर लिया, ऑर्गन्स कवर कर लिया, सारा कुछ cover, इसके अलावा और क्या एग्रावेट बचता, कुछ बचता ही नहीं इसके बाद, बचता है, अभी भी बचता है एग्रावेटेड। एग्रावेटेड क्या होएगा, व्हेन द प्रोटेक्टर्स बिकम द परपिट्रेटर्स, क्या बन जाते हैं, जब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब रक्षक ही, ठीक है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, मतलब पुलिस वाले ने ये कर दिया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, आर्म्ड फोर्सेस ने किसी को ने उसने कर दिया, सोल्जर ने कर दिया। अब समझ में आया ऊपर वर्ड क्यों आर्म्ड फोर्सेस की बात की गई थी, कि आर्म्ड फोर्सेस क्या है। तो अगर प्रोटेक्टर ही परपिट्रेटर बन जाए, रक्षक ही भक्षक बन जाए, स्कूल टीचर, बताइए, वो तो बच्चे के वेलबींग के लिए होते हैं ना, हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर, वो तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है ना उनका, तो ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है कि नहीं, वही रक्षक ही भक्षक बन गए, उन्होंने ऐसा काम कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। उसको हम नाम चेंज कर दिया, एग्रावेटेड कर दिया, और सजा भी यहाँ पर मिनिमम कितनी थी, 10 years, वहां पर मिनिमम 20 years है, कितनी है, इनको मिनिमम 20 मिलनी है, और मैक्सिमम हम देखेंगे इवन डेथ पेनल्टी है, क्या है, रक्षक और भक्षक, ठीक है। तो आप देखिए, तो रक्षक भक्षक ये कब लगेगा, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, whoever being a police officer, whoever being a police officer commits what, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पुलिस ऑफिसर अगर ऐसा कर देगा ऑन अ चाइल्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, अपनी मतलब अब जैसे मॉडल टाउन एरिया के थाना तो उसको वही पड़ता है ना, अपनी मॉडल टाउन एरिया के अंदर ही वो ऐसा कुछ कर दे,
इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन के अंदर कर दे, पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस में कर दे, या उस एरिया के अंदर कहीं भी कर दे, ठीक है, एट विच ही इज अपॉइंटेड, और इन द प्रेमिसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, किसी भी पुलिस थाने के अंदर कर दे, चाहे उसकी अथॉरिटी में आता है या नहीं आता, बट किसी भी पुलिस स्टेशन में। आगे, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के कोर्स में कर दे ऐसा काम, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और अदरवाइज ऑल्सो, और या फिर जहां पर लोगों को पता था कि ये पुलिस ऑफिसर है, ही इज नोन और आइडेंटिफाइड एज अ, जहां लोगों को पता है ये पुलिस ऑफिसर है, वहां पर लोगों का विश्वास, अब देखो पुलिस ऑफिसर मीन्स व्हाट, they are the protector of the body and property of the citizens, although I think this is a misnomer, ठीक है, I don't believe so. Today, in today's scenario, police is a protector of your body and property. Lot of cases are coming, fake encounters and all that. वो आपने कर्नल बाट केस देखा होगा, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स दे बीटन, दे बीट द, वो किसको मारा था, कर्नल बाट को। उसके बाद एक अभी एक और केस आया जिसमें उसको उनको मार दिया, वो टीचर थे। So I consider it a misnomer nowadays. I don't believe that police, they are the protector of your body and person. This lecture is going to upload it online. I don't. This is my personal opinion. आगे देखिए, whoever being a member of the armed forces, वो कौन है, रक्षक ही भक्षक बन गए। आर्म फोर्सेस, आप अपने फौजियों पे विश्वास करते हो कि नहीं करते? आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड, ये सारा वही है, विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया, इन एनी एरिया अंडर द कमांड ऑफ द पुलिस ऑफिसर, अपनी एरिया के जहां उनका एरिया था वहां कर दिया, इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया वेयर ही इज डिप्लॉयड, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, वेयर इज नोन एंड ऑल दैट। करें पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सॉरी। आगे लिखा है हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा कर देगा, कोई भी सरकारी ऑफिसर ऐसा कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा, aggravated sexual penetrative sexual assault. Then whoever being the management or on the staff of a jail, जेल के अंदर अब जेलर है, जेल के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अगर किसी फीमेल के ऊपर या किसी भी मेल बच्चे के ऊपर, माइनर मेल फीमेल के ऊपर ऐसा कर दिया, प्रोटेक्शन होम, जुवेनाइल प्रोटेक्शन होम देखे आपने, बाल सुधार केंद्र, जुवेनाइल्स मींस द चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, छोटे बच्चे जो 18 साल से नीचे ऑफेंस कर देते हैं, जैसे मैंने अभी निर्भया का ही बताया था, उसमें उनको जेल में नहीं रखते, कहाँ रखते हैं उनको, जुवेनाइल होम्स में रखते हैं उनको। तो वहां पर अगर किसी स्टाफ मेंबर ने कुछ ऐसा कर दिया, वो क्या बन जाएगा, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देन आगे देखिए, हुएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ अ स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कोई नर्स, कोई वार्ड बॉय, कोई डॉक्टर, कोई ऐसा कर दे बच्चे के ऊपर, वो क्या बन जाएगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देन हु इज इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल, टीचर, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर है, ये सारे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होते हैं, कौन से होते हैं ये, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ। देन whoever commits gang penetrative sexual assault on a child, gang मतलब दो चार लोगों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा किया है, तो वो क्या बन जाएगा, aggravated sexual penetrative sexual assault। तो यहाँ लिखा है अ चाइल्ड सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्संस ऑफ अ ग्रुप इन अ फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, मतलब एक से ज्यादा लोगों ने ऐसा किया है, तो फिर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, वो क्या है, एग्रावेटेड फॉर्म। देन whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया उसके साथ, जो ऊपर हमने पढ़ा था, बट डेडली वेपन्स, उसको ऐसे बंदूक रख के फिर किया है, और या फिर फायर के डरा के उसको किया है, या फिर हीटेड सब्सटेंस, कोई गर्म चिमटा या कुछ भी ऐसा दिखाकर कि लगा देंगे तेरे, और corrosive सिस्टम, फिर ये किया है, फिर वो क्या बन जाएगा, एग्रावेटेड। फिर whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt, तो वो किया और साथ ही साथ बच्चे को ग्रीवियस हर्ट भी कॉज कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया बच्चे को, मतलब उसकी बॉडी पे कट आ गए, या बॉडी उसकी हड्डी उड्डी तोड़ दी साथ में, ठीक है, कॉजिंग बॉडीली इंजरी, और कॉजिंग बॉडीली इंजरी, और इंजरी टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स, या बच्चे की सेक्सुअल ऑर्गन्स पे इंजरी कॉज कर दी वो करते दौरान, तो फिर वो बन जाएगा एग्रावेटेड। whoever commits penetrative sexual assault on a child, जो कि फिजिकल इनकैपेसिटेटेड था, मतलब मेंटली इल था बेचारा, मैं मेंटली इल था बच्चा, मेंटली रिटार्डेड था, उसके ऊपर अगर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट एग्रावेटेड फॉर्म हो जाएगी वो। देन इन द केस ऑफ अ फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट, तो फीमेल चाइल्ड के ऊपर किया, और यहाँ पर मेल बच्चा नहीं आ सकता, क्योंकि मेल तो कभी प्रेग्नेंट नहीं ना हो सकता, तो यहाँ पर फीमेल ही आएगा, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, और एंड उस बच्चे को क्या कर दिया है, प्रेग्नेंट, तो ये एग्रावेटेड बन जाएगा। देन या फिर बच्चे को एड्स कर दिया, एचआईवी कर दिया, तो भी वो एग्रावेटेड बन जाएगा।
या फिर बच्चा कोई भी मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा था, ठीक है, और ये कर दिया, वो एग्रावेटेड बन जाएगा। या बच्चे के साथ एक से ज्यादा बार कर दिया, वो एग्रावेटेड बन जाएगा, ठीक है। whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years। अब ध्यान दो, वैसे तो बच्चे की एज 18 साल से नीचे है, बट अगर उस बच्चे की एज कितने थी, 12 ईयर से कम, तो वो पेनिट्रेटिव नहीं है, फिर वो क्या है, एग्रावेटेड। तो इसका मतलब एक नॉर्मल बंदा, चाहे पुलिस ऑफिसर हो या ना हो, चाहे आर्म पर्सन हो या ना हो, एक नॉर्मल बंदा जो नहीं भी जानता उसको, पर अगर उस बच्चे की एज 12 साल से कम थी, तो फिर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, वो एग्रावेटेड है। क्या है, मिनिमम 20 साल की सजा बांटते पई है, 20 साल की सजा मिलनी मिलनी है। वो तो फिर अगर खुद मेंटली इल है, तो वो तो फिर हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं इंडियन पिनल कोड में हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं कि भाई जिसने परपिट्रेटर है वो खुद ही पागल था, तो वो हम अनसाउंडनेस का डिफेंस पढ़ते हैं। तो अगर तो प्रूव करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि वो प्रूव हो पाएगा, वो प्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब जो पर्सन ये एक्ट कर रहा है, क्या आप उसको पागल मान सकते हो? अगर कोई बंदा ये एक्ट कर रहा है, क्या उसको हम पागल मान सकते हैं? पागल नहीं मान सकते हम, नहीं मान सकते। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तो वो नहीं होती है अनसाउंडनेस। अनसाउंडनेस होती है, सबसे पहले आपको प्रूव करो ही इज मेडिकली अनसाउंड। मेडिकली वो तो चलो ट्रॉमा से सफर किया था, मेडिकल अनसाउंडनेस का मतलब होता है डॉक्टर विल गिव द सर्टिफिकेट दैट ही इज मेडिकली अनसाउंड। देन आफ्टर दैट यू हैव टू प्रूव द लीगल अनसाउंडनेस। दोनों चीजें प्रूव होनी चाहिए, एक तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आओ, ये पागल है, डॉक्टर साबित करे कि मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड अनसाउंडनेस है इसको। मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड अनसाउंडनेस का मतलब जो मेडिकल साइंस के अंदर जो जो अनसाउंडनेस रिकॉग्नाइज किए हैं वो है उसको कोई ना कोई। And apart from that, you have to prove that he is suffering from legal unsoundness. Legal unsoundness that means that he is unable to understand the nature of his acts. How will you prove that he is unable to understand the nature of his act? If he is इतना unsound, तो उसको कैसे पता कि ये ऐसा ऐसा ऐसे ये एक्ट करने होते हैं? तो आई डोंट थिंक सो कि मिलेगा उसको। तो यहाँ पर हो गया जी। देन उसके बाद बच्चे को अच्छा यहाँ लिखा है whoever being the relative of the child through blood। ब्लड मतलब फादर नहीं कर दिया, ब्लड 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 रिलेशन फादर नहीं कर दिया, अडॉप्शन बच्चे को अडॉप्ट किया था अडॉप्टिव फादर ने कर दिया, या मैरिज, मैरिज से रिलेटेड जो भी संबंध, मतलब ब्लड अडॉप्शन मैरिज से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं उनमें से, तो ज्यादातर ये जो बच्चों के ऊपर होते हैं ना, ये बच्चों के ऊपर वो लोग करते हैं जो बच्चों को ना अपने भरोसे में ले लेते हैं। तो वो ज्यादातर कौन होते हैं, मतलब रिश्तेदार, कोई मामा ताया चाचा, मतलब ऐसे वो बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, रियलिटी में बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे, ठीक है। डू नॉट जनरलाइज, ऐसा नहीं कह रहा, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने घिनौने होते हैं कि इतने घिनौने काम करते हैं वो। या गार्जियनशिप, और इन द फॉस्टर केयर। फॉस्टर केयर क्या होता है, फॉस्टर केयर तो बायोलॉजिकल नहीं है वो उसके पेरेंट्स या कोई गार्जियन, फॉस्टर मतलब जो उनको ब्रिंगिंग कर रहा है सिर्फ, वो फॉस्टर केयर होता है। देन हैविंग अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब क्या, जो उसके साथ रह रहा था बच्चे के साथ, एक घर में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, है ना। देन आगे लिखा है बीइंग द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ स्टाफ और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द चाइल्ड। ये कौन से होते हैं जो बच्चे को सर्विसेज देते हैं? मान लो बच्चा योगा करने गया, सर्विसेज टू द चाइल्ड। बच्चे को योगा, स्विमिंग क्लास में जाता है बच्चा, जिम जाता है बच्चा, दोज इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो मैनेजमेंट स्टाफ, उनमें से अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो वो भी क्या बन जाएगा, एग्रावेटेड। देन हूएवर बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। देखो लास्ट में खत्म ही कर दी बात कि जो भी क्या है, ट्रस्ट अथॉरिटी ऑफ अ चाइल्ड, वो कर दे। देन अब अगर उस बंदे को पता था कि ये बच्चा ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, फिर भी उसने वो कर दिया, एक तो है कि बच्चे को ही प्रेग्नेंट कर दिया, एक है ऑलरेडी बच्चा पहले से प्रेग्नेंट था। तो जैसे चाइल्ड मैरिज होती है ना, चाइल्ड मैरिज होती है कि नहीं होती, 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी, उसकी शादी हो गई, तो वो प्रेग्नेंट हो गई, अब उसके ऊपर किसी ने ये सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया पेनिट्रेटिव, तो वो क्या बन जाएगा, एग्रावेटेड बन जाएगा। देखो ऐसा है कि हमारे पास इंडियन पिनल कोड में एक एक्सेप्शन थी। इंडियन पिनल कोड में हमारे पास क्या एक्सेप्शन थी, दो एक्सेप्शन है हमारे पास इंडियन पिनल कोड के अंदर। मतलब व्हेन अ मैन कमिट्स अ रेप अपॉन अ वुमन, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो तो सारा हम पढ़ेंगे इंडियन पेनल कोड में। दो एक्सेप्शन है, एक तो है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर को एग्जामिनेशन, कई बार एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर कई बार कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके देखना पड़ता है, या कोई मे बी कुछ
एग्जामिनेशन करनी पड़ती है डॉक्टर्स को, या फिर इवन डिलीवरी तो चलो वैसे मुझे नहीं पता माइनर गर्ल की डिलीवरी होगी या नहीं, उस टाइम पे भी ऐसा करना पड़ सकता है, तो डॉक्टर तो हाथ नहीं लगाएगा फिर अगर वो मेल गायनाकोलॉजिस्ट है। और वैसे भी मेल रेप के लिए, रेप की बात कर रहा हूँ, पॉक्सो के अंदर तो जेंडर न्यूट्रल ही है वो, ठीक है, तो ऐसे तो कोई टच भी नहीं करेगा, इसलिए उनको एक्सेप्शन दी गई वहां पर कि मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए क्या है, एक्सेप्शन है। एक मिनट रुक जाओ, मेडिकल प्रोसीजर समझ में आ गया। वहां पर दूसरी है मैरिटल रेप। क्या है? मैरिटल रेप या मैरिटल रेप जो भी बोलो आप, मैरिटल रेप। वहां पर बोला है कि अगर एक एक हस्बैंड और एक वाइफ, ठीक है, अगर इसकी एज, वाइफ की एज, एक्चुअली था क्या कि पहले 15 ईयर्स थी वहां पर बोला था कि अगर वाइफ की एज 15 ईयर्स या 15 ईयर से ऊपर है, और अगर उसका हस्बैंड उसके साथ विदाउट दी कंसेंट जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, तो वो तो टेक्निकली रेप माना जाना चाहिए, टेक्निकली। बट उन्होंने बोला है, अगर हस्बैंड ऐसा करेगा विदाउट दी कंसेंट तो वो रेप नहीं है। वहां पर ऐसा बोला गया था, वहां पर बोला गया था अगर हस्बैंड ऐसा करेगा तो वो रेप नहीं है। अब प्रॉब्लम पता क्या हो गई? प्रॉब्लम ये होगी, पॉक्सो के साथ इसका कंफ्लिक्ट हो गया। पॉक्सो कहता है कि 18 साल से हर किसी को मैं क्या मानूंगा, चाइल्ड, और उसके साथ कोई भी अगर ऐसा कोई काम कर देगा तो उसको मैं क्या मानूंगा, ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस मानेगा ना वो। तो उन्होंने बोला सर ये तो प्रॉब्लम होगी सर, यहाँ पर लिखा हुआ है आईपीसी में कि 15 साल से बस ऊपर होनी, 15 साल या 15 साल से ज्यादा होनी चाहिए एज। हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ विदाउट कंसेंट फोर्सफुली भी कर ले सेक्सुअल इंटरकोर्स तो वो ऑफेंस नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के थ्रू इसको चेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एज है, आज आज जब आप नया लॉ पढ़ोगे ना तो इसमें 18 ईयर्स है। क्या है ये? वो अब 18 ईयर्स कर दिया है। तो अगर आज शादी हो भी गई, चाइल्ड मैरिज, तो सपोज करो एक 17 साल की लड़की की शादी हो गई, लड़के की एज चाहे जितनी मर्जी हो, 18 हो, 20 हो, जितनी मर्जी हो, अगर इसने इसके ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट ऐसा कर दिया, तो अब ये रेप भी है, क्योंकि रेप में लिख दिया 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 18 या 18 साल से ऊपर, ये 18 साल से कम है ना, तो अब ये क्या माना जाएगा? बट अगर उस वाइफ की एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 25 साल है, और अगर हस्बैंड फोर्सफुली करता तब वो रेप नहीं। मैरिटल रेप इज नॉट रेप इन इंडिया, इट इज नॉट एन ऑफेंस। पर एज 18, एज कितनी? 18 से ऊपर एज है, चाहे 20 है, 25 है, जितनी भी है, अगर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया विदाउट एनी, विदाउट द कंसेंट, सो दैट इज नॉट रेप। तो अब ये डायकोटॉमी खत्म हो गई है पॉक्सो और आईपीसी की। पहले थी, पहले आईपीसी कह रहा था 15 साल, तो 15 साल, इधर पॉक्सो क्या है, कह रहा है 18 साल, तो हस्बैंड यहाँ फंस जाएगा, फिर जाके अगर वहां से नहीं बचेगा तो यहाँ फंस जाएगा। अब वो डायकोटॉमी गलत खत्म हो गई, वहां पर भी क्या कर दिया, नए लॉ के अंदर क्या कर दिया इसने, इन्होंने 18 साल कर दिया है, क्योंकि 18 साल से अगर कम पे भी अगर हस्बैंड ऐसा कर लेगा तो वो बन जाएगा ऑफेंस। मतलब वही है, इससे वही तो होगा। बट ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में, क्योंकि कौन कंप्लेंट करेगा? हाँ मुझे बताओ, अगर उसकी लड़की की एज 17 ईयर से कम भी है, 18 से कम भी है, तो डू यू थिंक कि उसकी शादी और वो बोलेगी मैं राइट एक्सरसाइज करके दिखाऊं तेरे को? उसकी शादी टूट जाएगी। कई बार तो पेरेंट्स प्रेशर में हो जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए फिर, ये समझ में आ गया या नहीं, जी बताइए फटाफट से जल्दी से। ओके, ये हो गया हमारा, देन ये भी हो गया। हाँ, ये whoever commits penetrative sexual assault on child and attempts to murder the child, तो साथ में उसको क्या करने की कोशिश की है? वो तो किया ही किया साथ में, और मर्डर करने की कोशिश की है, मारा नहीं है, मर्डर करने की कोशिश की है। देन whoever commits child attempts to murder child हो गया, एंड इन द कोर्स ऑफ communal और sectarian violence, तो दंगे भड़के हुए थे, दंगे भड़के हुए थे, उसके आड़ के अंदर उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया किसी ने, दंगों की आड़ में, कि अब तो सारा अफड़ा तफड़ी मची हुई है, ये ऑफेंस कर दो, वो क्या बन जाएगा? एग्रावेटेड सेक्टारियन वायलेंस। आगे देखिए, commits penetrating sexual assault on a child who has been previously convicted of having committed any offense under this act, तो वो पहले भी ऐसे किसी ऑफेंस के लिए क्या हो चुका था, कन्विक्ट, अब दोबारा कर दिया उसने ऐसा कोई ऑफेंस, अब वो क्या बन जाएगा? एग्रावेटेड, सजा ज्यादा होगी। whoever makes the child to strip, अच्छा, कमेंट, वो कमिट करने के बाद, उसके बाद उसको परेड करवाया न्यूड बच्चे को, इन नेकेड इन द पब्लिक, वो भी क्या बन जाएगा? एग्रावेटेड। तो ये हो गया जी एग्रावेटेड खत्म। एग्रावेटेड की सजा कितनी है वो देख लो, नॉट लेस देन क्या लिखा है यहाँ पर, 10 ईयर्स, बट ये चेंज हो चुका है, नाउ इट हैज बिकम नॉट लेस देन हाउ मच,
20 years. कितना है? Not less than 20 years and up to life imprisonment and up to death also. वो क्या हो जाएगा? up to death. प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए फटाफट से. ओके प्यारे बच्चों आगे देखिए. नाउ नेक्स्ट ऑफेंस इज सेक्सुअल असॉल्ट. तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज ओवर, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज ओवर, रक्षक भक्षक इज ओवर. नाउ इट इज सेक्सुअल असॉल्ट. सेक्सुअल असॉल्ट में देयर इज नो पेनिट्रेशन, देयर इज नो penetration is not involved, so it is similar to outraging the modesty of the woman. कैसा है ये? outraging the modesty of the woman के जैसा है. तो जहां पर मैंने केपीएस गिल वाला आपको एक एग्जांपल बताई थी केस है ना, वैसा है. तो आप देखिए प्लीज यहाँ पर whoever with the sexual intent. देखिए जरा whoever with the, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इंटेंट की बात कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाले ऑफेंसेस में कोई इंटेंशन की बात है नहीं की थी. तो आप देखिए रेप जो ऑफेंसेस होते हैं वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस होते हैं. कौन से होते हैं वो? जैसे अगर आप थेफ्ट की बात करेंगे तो वहां लिखा हुआ है whoever with the dishonest intention of moving the movable property out of the possession without the consent of the person moves the property. ये है ना सारे ऑफेंस. तो वहां पर वर्ड लिखा है ना डिसऑनेस्ट इंटेंशन. अब आपकी बॉटल है सेम है, इनकी भी बॉटल सेम है. अब आपको गलती से बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट लग गया, आपको लगा ये मेरी ही है, आपने डाला लेके चल दिए. क्या आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी चोरी करने की? नहीं थी ना, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी. बट रेप जैसे ऑफेंसेस में कहीं भी आपने ऐसा वर्ड नहीं पढ़ा कि whoever with the intention inserts the penis or inserts the object, ऐसा तो नहीं ना पढ़ा. इसका मतलब कोई बंदा कोर्ट में जाके ये बोले सर मिस्टेक से हो गया, आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन नहीं है, तो वहां पर इंटेंशन की कोई जरूरत है ही नहीं. हमें कोई इंटेंशन चाहिए ही नहीं. ऐसा एक्ट कर दिया आपने, आपने वो पढ़ा टॉट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब आपकी कोई इंटेंशन थी या नहीं थी, आपका कोई फॉल्ट है था या नहीं था, गलती से भी अगर ऐसा काम हो गया तो क्या हो जाएगी? आपको सजा हो जाएगी. तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कोई बेंजरिया रिक्वायर्ड नहीं है. कोई बंदा कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता सर मेरी इंटेंशन नहीं थी करने की, सर मेरी नॉलेज नहीं थी, मेरी नॉलेज भी नहीं थी ऐसा. नो, नथिंग डूइंग, यू आर गोइंग टू जेल. ठीक है. नाउ इन दिस सेक्शन दे आर रिक्वायरिंग सेक्सुअल इंटेंट. यहां पर इंटेंशन की जरूरत है. यहां पर क्या जरूरत है? सेक्सुअल इंटेंट. यहां पर आपको प्रूव करनी पड़ेगी, आपको दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी. वहां पर सिर्फ एक ही चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि इसने ये किया, क्या किया? पेनिट्रेशन की. क्या किया? इसने सर टच किया, इसने जो भी किया वहां पर जो तो कैसे क्या चीज? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. उसमें तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बच्चे का, तो पता चल जाता है इसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है. पहले 2 फिंगर टेस्ट भी होता था, वो बैन हो गया है. फीमेल्स के केस में 2 फिंगर टेस्ट होता है, दे इंसर्ट 2 फिंगर इनटू द वजाइना ऑफ द वुमेन टू टेस्ट कि वेदर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ. बट अब वो बैन हो गया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, बोला इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन. ठीक है, ये कैसे आप कर सकते हो? नाउ अब तो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिससे टेस्ट हो जाता है कि हाँ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है. वो नहीं कर सकते. यस. कौन? हाँ जी. ऐसा नहीं हो सकता वो. तो वो तो उसको समझा के करवा लेते हैं उससे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है कि बच्चा कह दे मैं नहीं कराता, जाओ जो करना कर लो. ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो वो हो ही जाता है, करवा लेते हैं. तो अब जैसे इन्होंने बोला सर माउथ के केस में कैसे प्रूव करेंगे? अब माउथ के केस में तो फिर हम, पर बच्चे की टेस्टमनी, बच्चे की गवाही, बच्चे की गवाही, अब सोल टेस्टमनी बच्चे की गवाही के ऊपर हम उस बंदे को कन्विक्ट कर दें, सजा दे दें उसको 10 साल 20 साल जेल में मिनिमम, तो इट डिपेंड्स, वी नीड मोर एविडेंसेस. पर मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. इंटरेस्टिंग बात है कि इस लॉ के अंदर एक सेक्शन है, आपको मिलेगा नीचे जाके, जो ये कहता है प्रिजम्पशन. आपने डॉरी डेथ पढ़ा कभी मेरे साथ? डॉरी डेथ, डॉरी डेथ में ऐसी प्रिजम्पशन होती है. डॉरी डेथ में क्या होती है कि अगर एक लेडी की डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज हो जाए, अननेचुरल डेथ हो जाए उसकी, और उसके साथ डॉरी क्रुएल्टी की जाए, तो ये मान लिया जाता है कि इसकी डेथ इसके हस्बैंड ने की है या उसके रिलेटिव ने की है. अब जैसे मैंने आपको बहुत एक इजी एग्जांपल समझाई थी एक बार, मैंने बोला था कि एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के ऊपर ना डॉरी क्रुएल्टी करता था, कह रहा दहेज लेके आ, दहेज लेके आ. तो उसने अपनी उसकी वाइफ ने अपने पेरेंट्स को लेटर लिखी कि ये मुझे बहुत परेशान करते हैं.
फिर एक दिन क्या हुआ कि भाई उसका जो हस्बैंड था वो ऑफिस के लिए जा रहा था, तो उसको रास्ते में एक महात्मा मिले। ये रियल स्टोरी है। एक महात्मा मिले और महात्मा ने उनको बोला कि बच्चा बात सुन। मैं कहा हाँ जी। तो बेटे तू अपनी वाइफ के साथ को तंग करता है ना? कह रहा हाँ जी तंग तो करता हूँ जी। तो कहते जिंदगी में कभी तेरे को सुख नहीं मिलेगा, तरक्की नहीं मिलेगी, जिंदगी में दुख ही दुख मिलेंगे। कहता महात्मा मैं अपने दुख अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आज के बाद अपनी वाइफ को कभी तंग ना करी, देखी तेरी तरक्की कितनी होती। तो वो सुधर गया उसके बाद। अब देखो उसने डॉरी क्रॉयल्टी की, उसके बाद क्या हो गया, वो सुधर गया। तो एक दिन, 2 दिन, एक महीने, 2 महीने बहुत अच्छे से रह रहे हैं दोनों। रोज गोलगप्पे खाने जाते हैं, ठीक है, और मूवी देखने जाते हैं वीकेंड्स के ऊपर। ऐसा है रियलिटी में। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो ऑफिस जा रहा था। उसने बोला कि ओके आई विल सी यू इन द इवनिंग। उन्होंने बोला जल्दी आना, और जल्दी आऊंगा, ठीक है। तो वो अकेले रहते थे, ठीक है। तो वो उसकी वाइफ घर में अकेली। अब उसे बोला चलो साफ सफाई कर लेती हूँ, पहले कुछ कर लेती हूँ काम। तो वो स्टेयर्स उतर रही थी। स्टेयर्स उतरते उसका पैर फिसला और धड़म से गिरी और उसका सिर लगा स्टेयर्स पे। गिरती 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 नीचे आई एंड वो अनकॉन्शियस है। और ब्लड लॉस की वजह से उसकी क्या हो गई, डेथ। घर पे कोई था ही नहीं, कोई बचाने वाला भी नहीं था। अब उसकी शादी को अभी हुए ही 2 साल थे, ठीक है। अब क्या कहता है डॉरी डेथ का ऑफेंस? कहता है अगर उस लेडी की क्या हो जाए डेथ, अननेचुरल, अननेचुरली हुई है, हार्ट अटैक से थोड़ी मरी है। नेचुरल होता है ना हार्ट अटैक, भगवान ले गए बैठे बैठे। ये तो अननेचुरल है। वो तो कैसे पता चलेगा नेचुरल? भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर बोलेगा कि सिर पे चोट है जी, ब्लड लॉस की वजह से हो गया। फिर 7 साल, अभी 7 साल से कम ही हुए अभी शादी को, ठीक है। बताओ उसके साथ डॉरी क्रुएल्टी हुई थी? उसके माँ बाप आएंगे, हमारी बेटी को इसने मार दिया, ये देखो हमारे पास लेटर लिखे हुए हैं। वो बोलेगा मैं तो बदल गया था, मेरे को तो महात्मा जी मिल गए थे। वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला हाँ अननेचुरल, ठीक है नेचुरल, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो गया। शादी को कितने साल हुए सर? ये देखो शादी का कार्ड, 2 साल, 7 साल से कम है, ठीक है, ये भी हो गया। और ये देखो सर लेटर, हमारी बेटी ने लिखा था, हैंड राइटिंग मैच कर, ठीक है, इसी ने मारा है। अब मारा है उसने? उसने मारा क्या? वो तो कहाँ था, वो तो बेचारा बाहर था। बट लॉ क्या कहता है? ये है वुमेन के फेवर के लॉ। वैसे ये रिक्वायर्ड थी हमारे लिए, पता है ये रिक्वायर्ड क्यों था, मैं आपको बताऊं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करता, बट इसका मिसयूज भी होता है वैसे अब तो। पता क्यों ऐसा लॉ क्यों बनाया गया था? क्योंकि आप ये देखो कि जो डॉरी डेथ होती है ना, वो एक चार दीवारी के अंदर होती है। कोई शरेआम थोड़ी मारता है अपनी पत्नी को जाके कि ये डॉरी लेके मैं मार दिया। वो एक चार दीवारी के अंदर होता है और सारे मिले होते हैं उसके अंदर। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती भी है तो उनको पास उन मर्डर प्रूव करना पड़ता है ना, कि मारा है, मर्डर प्रूव करना पड़ता है। मर्डर प्रूव करने के लिए सारे इंडिपेंडेंट एविडेंसेस चाहिए। क्या चाहिए हमें सारे? भाई आप शो करो कि चाकू मिल गया जी, चाकू के फिंगर मिल गए जी, इसके बॉडी के ऊपर इसके ब्लड के निशान भी मिल गए जी, इसके सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई जी, आई विटनेस भी मिल गया जी। सारे इंडिपेंडेंट कड़ियां जुड़ गई ना, कड़ियां जुड़ गई और ये साबित हो गया कि मारा किसने है, किसने। सुसाइड, वो तो फिर अबैटमेंट टू सुसाइड होता है ना, अबैटमेंट टू सुसाइड। उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। उसको क्या किया गया था? अबैट मजबूर किया गया था, डॉरी मांगते थे तो उसने क्या कर लिया, खुद सुसाइड कर लिया। वो तो चलो अलग हो गया। पर मैं कह रहा हूँ मर्डर प्रूव करने के लिए सारी इंडिपेंडेंट एविडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? बट यहाँ पर इस केस में नॉर्मली प्रोसिक्यूशन जो होती थी उसके पास एविडेंस ही नहीं होते थे। ना सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई और कोई एविडेंस मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जो ये लोग थे ये बचते जा रहे थे, बचते जा रहे थे, बचते जा रहे थे। तो लेजिस्लेचर ने बोला काम ही खत्म करो। उन्होंने बोला इसके ऊपर डालो बर्डन। बस 3 चीजें देखो, कि वो अननेचुरल मर गई, 7 साल के अंदर मर गई, उसको डॉरी के लिए तंग करते थे, हाँ भाई तूने मारा। अब वो बोलेगा जनाब मैंने नहीं मारा, मैं तो ऑफिस था। तो प्रूव कर फिर तू। हम तो ये मान के चल रहे हैं किसने मारा है। ढूंढ लिया रास्ता, रास्ता ढूंढ लिया कि नहीं ढूंढ लिया? कि जो चार दीवारी के अंदर एविडेंस नहीं मिल रहे थे, उन्होंने रास्ता ढूंढ के रिवर्स बटन डाल दिया किसके ऊपर, एक्यूज के ऊपर। यहाँ पर भी ऐसा ही है, पॉक्सो के अंदर भी ऐसा ही है। जैसे आपने बोला ना सर कैसे वो होगा, तो पॉक्सो के अंदर पता क्या है? पॉक्सो के अंदर प्रिजम्पशन है, बस कुछ बेसिक फैक्ट्स, फाउंडेशनल फैक्ट्स प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करना है? इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, वो तो डॉक्टर की रिपोर्ट बता देगी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, ठीक है। और सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसकी एज माइनर, उसकी एज 18 साल से क्या है, ये दो चीजें तो प्रूव करनी पड़ेंगी ना आपको। अगर आप यही नहीं प्रूव करोगे कि इसकी एज 18 साल से कम है, फिर थोड़ी प्रिजम्पशन है। कुछ फाउंडेशनल फैक्ट्स जैसे वहां पर प्रूव किए थे, यहाँ पर भी प्रूव करने हैं। क्या? कि इसकी एज कितनी है, 18 साल से कम, और इसके साथ क्या हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट। बस कोर्ट बोलेगा कि किसने किया है, तूने किया, तू प्रूव कर कि तूने ऐसा नहीं किया। अब वो माउथ वाली एग्जांपल मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रही।
कि उसका कोई साइंटिफिक टेस्ट या कोई मेडिकल टेस्ट होता है कि जिससे ये प्रूव हो जाए? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा। तो फिर वो तो बच ही जाएगा, वो कैसे कन्वर्ट होएगा फिर? व्हाट कैन आई डू, वी नीड एविडेंसेस। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें यहाँ पर, ये इस ऑफेंस के लिए क्या चाहिए हमें, इंटेंट चाहिए, इंटेंशन प्रूव करनी पड़ेगी यहाँ पर। whoever with the sexual intent क्या करता है, touches the vagina पेनिस। अब यहाँ से भी पता चलता है, देखो यहाँ पर एक फीमेल भी तो ऐसा कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, फीमेल कर सकती है। whoever touches the vagina, penis, anus, और आगे क्या लिखा है, breast of the child, or makes the child to touch the vagina, या बच्चे से टच करवाया, बच्चे से टच करवाया इन चीजों को, ऑफ सच पर्सन, उस बंदे ने अपने खुद के ये ऑर्गन्स को टच करवाया, और एनी अदर पर्सन, या किसी और पर्सन के ऑर्गन्स को टच करवाया, और डज एनी अदर एक्ट, ये देखो एनी अदर एक्ट, ये रेजिडरी छोड़ दिया इन्होंने, इन्होंने बोला ये तो हमने कुछ एग्जांपल बता दी, इसके अलावा भी कोई अदर एक्ट किया है विद द सेक्सुअल इंटेंट, विद द सेक्सुअल इंटेंट। अब देखो यहाँ पर तो समझ में आया कि बच्चे को यहाँ टच कर लिया, देखो यहाँ पेनिट्रेशन ही है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ टचिंग है, बट ये टचिंग कैसे होनी चाहिए, विद द सेक्सुअल इंटेंट। यहां पर कोई टच करेगा ना, कोई बंदा ये बोल दे कि सर यहाँ टच तो किया था बट मेरी सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी, थप्पड़ ही पड़ेगा एक मुंह पे, है ना, बोलोगे या नहीं? मतलब मैं कर रहा हूँ कि वो तो शरेआम ही प्रूव हो रहा है कि सेक्सुअल इंटेंट है इसकी, बट यहाँ पर फंसता है काम, जब यहाँ पर हम देखते हैं एनी अदर एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, अगर एक बच्चे को ऐसे, कई बार कोई टीचर ऐसे कर देते हैं, वेरी गुड बेटे, शाबाश, अब टच तो हो गया, अब क्या ये सेक्सुअल असॉल्ट है? क्यों नहीं है, सेक्सुअल इंटेंट नहीं है। पर ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर, ऐसे भी केसेस हैं जहां पर वो बच्चे को इनएप्रोप्रिएटली टच करते हैं, चलो यहाँ तो नहीं किया, बट मे बी ऑन द बैक, ऑन द बैक में भी वो गुड टच बैड टच सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, उसके कंडक्ट से, इंटेंट, कि इसकी इंटेंट उसके कंडक्ट से, कि ऐसा कोई टीचर नहीं करता भाई, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करता, डॉक्टर भी क्या करे तो डॉक्टर भी ऐसा कोई नहीं करता। तो एनी अदर एक्ट में, अब बताओ किसी के चीक्स को ऐसे ऐसे कर दिया, बताओ वो आ जाएगा सेक्सुअल असॉल्ट? चीक्स को तो नहीं कर सकते हम, चीक्स पे तो हम नहीं कह सकते। तो डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, जो मतलब नेक के नीचे बॉडी पार्ट्स होते हैं, अब जैसे आम पे ऐसे कर दिया, इसको नहीं मान सकते हम, तो डिपेंड करता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स वाले जो है उनको तो वो तो बनेगा ही बनेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर एक्ट, अब आप अपने आप सोचते रहिए एनी अदर एक्ट क्या हो सकता है, बट वन थिंग वी नीड टू प्रूव इज सेक्सुअल इंटेंट। आगे बात समझ या नहीं? ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स क्या होना चाहिए यहाँ पर, फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, फिजिकल कॉन्टैक्ट, इज दैट फाइन? तो ये आप बहुत बार देखते हो, बस में वो लड़की जा रही थी और बस में ऐसे धक्का लगा, उसने थप्पड़ मारा खींच के, पता नहीं चलता। ठीक है, तो वहां पर ऐसे मतलब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो अगर उस बच्चे की एज कम है तो वो ये हो सकता है, अगर वो फीमेल है और उसकी एज 18 से ज्यादा है तो वो क्या होगा फिर, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन। आई बात समझ? देन इसकी इसकी पनिशमेंट, हाँ 354, इसकी वो अब चेंज हो चुका है, अब तो वो हमारा हो चुका है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी आपका 74 बीएनएस में, सेक्शन 74 इन द बीएनएस। अब आप इसकी पनिशमेंट देखिए क्या है, whoever commits sexual assault shall be punished with the imprisonment for either discipline for a term which shall not be less than, कम से कम कितनी है, 3 years, but which may extend to 5 years, 5 साल तक भी हो सकती है, and shall also be liable to fine, फाइन भी होगा। ठीक है जी, आगे देखिए, देन एग्रावेटेड भी बन जाएगा, एग्रावेटेड भी हो जाएगा, एग्रावेटेड भी हो जाएगा इसका भी बड़ा, तो रक्षक भक्षक बन गया, सेम है सारा। ये काम अगर किसी ने क्या किया हो, किसी पुलिस वाले ने, किसी सारा सेम है, बस इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, इसमें दो चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, वो है आपको, सिर्फ मैं दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, वो है आपको अ, अ, वो न्यूज में भी बहुत चल रहा है, पता है, न्यूज में चल रहा है, यहाँ पर ना एक चीज ऐड की गई थी, ऐड नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो अभी न्यूज में चल रहा है बहुत ज्यादा। एक पता नहीं किसी बाबे ने, पता नहीं वो लड़कियों को बेच बेच के पता नहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली है, कुछ ऐसा वो चल रहा है कुछ, है ना, कोई अभी पता नहीं कौन सा बाबा, पंजाब के अंदर की बात हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो लड़कियों को उसने
ऐसे उसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं, इसमें ना एक एडिशन हुई थी, और वो रियल केस अभी मैं देख रहा हूँ न्यूज में, वही चल रहा है सारा। क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, माइनस के ऊपर। अ, वो आप देखिए जरा, उसमें क्या है बेसिकली। प्यारे बच्चों, वो है, हाँ जी, whoever persuades, entice or coerce any child to administer or get administered a drug or a hormone, a drug or a hormone or any chemical substance to a child with the intent that such a child attains early sexual maturity। किसी बच्चे को ऐसा ड्रग खिलाना जिससे क्या हो जाए, उसकी अर्ली सेक्सुअल मेच्योरिटी। तो हार्मोन्स बच्चे के ना बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, वो जल्दी मेच्योरिटी अटेन कर लेता है। तो लड़कियों को खिला दिया तो वो जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन में ऐसा कर दिया जाता है। तो सिर्फ ऐसा ड्रग देना ही अपने आप में क्या बन जाएगा, सेक्सुअल असॉल्ट। इंड्यूस करना उनको या उनको खुद एडमिनिस्टर करना सेक्सुअल मेच्योरिटी के लिए जो ड्रग, कोई केमिकल ऐसे। ये एग्रावेटेड, एग्रावेटेड वाला है। हाँ हाँ, ये एग्रावेटेड में ऐड हुआ है ना। इसमें सजा देखो कितनी मिलेगी आपको, मतलब उसको पर्सन को, फॉर टर्म नॉट लेस देन 5 years। कितना है, फॉर टर्म नॉट लेस देन 5 years, which may extend to कितना है, which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। now moving ahead, सेक्सुअल हरासमेंट। अब नेक्स्ट टाइप का ऑफेंस बताइए कौन सा है, नेक्स्ट टाइप का ऑफेंस बताइए। एक ना केस आया था पहले, इस नेक्स्ट ऑफेंस को छोड़ो, पहले केस आया, उसका नेम लिखो, ईरा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। एरा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। बेसिकली दिल्ली के अलावा भी जो एरियाज हैं, जैसे कुछ एरियाज हैं जैसे नोएडा और ये, उनको नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो एरा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। यहाँ पर एक लेडी थी जिसकी एज थी 38 years, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो उन्होंने मांग करी कि सर इस केस में जो पर्सन एक्स है जिसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, सर इस केस में आप पॉक्सो लगाइए। क्या लगा दीजिए, पॉक्सो का सेक्शन लगाइए सर। और उन्होंने बोला पॉक्सो लगाने के लिए विक्टिम की एज कितनी होनी चाहिए, बिलो 18 होनी चाहिए विक्टिम की एज। यहाँ विक्टिम की एज कितनी है, उन्होंने बोला सर इसकी बायोलॉजिकल एज तो 38 years है, बट सर इसकी जो ये जो आपकी बायोलॉजिकल एज तो 38 है, बट जो इसकी मेंटल एज है, क्या कौन सी एज है, मेंटल एज। सर ये 6 से 7 साल के बच्चे का ब्रेन है इसका। होते ना कई जिनका मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो जिनका ब्रेन बच्चों जैसे ही रह जाता है। तो इसमें उन्होंने बोला सर इस लेडी की बायोलॉजिकल एज 30 है, बट मेंटल एज कितनी है। तो सर 6 to 7 years बच्चे जैसे ही ब्रेन है, उसको कुछ पता ही नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है। तो सर इस केस में आप क्या लगाइए, पॉक्सो। ये लैंडमार्क जजमेंट है, एरा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें फिर कोर्ट ने बोला इंटरप्रिटेशन करी, और कोर्ट ने बोला सॉरी, कोर्ट ने बोला कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्लियर है, पार्लियामेंट की इंटेंशन क्लियर है कि ये लॉ किसके ऊपर लगना चाहिए, जो 18 साल से कम है। यहाँ पर इसकी बायोलॉजिकल एज कितनी है, 38 years। अगर उन्होंने बोला कि अगर पार्लियामेंट की ये इंटेंशन होती कि मेंटल एज, जिनकी एज बायोलॉजिकल ज्यादा भी है अगर उनके, तो वो यहाँ पर लिख देते। हम अपनी तरफ से लॉ नहीं बना सकते, हम तो लॉ को क्या करते हैं, सिर्फ अप्लाई, और हम क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट। आई बात समझ या नहीं। क्या हुआ तो इसको क्या हुआ? उस लेडी के साथ, नहीं नहीं, ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था उसके साथ। रेप का वैसे? रेप तो लग गया, रेप तो लगना ही था। वो कह रहे पॉक्सो लगाओ, क्योंकि पॉक्सो में प्रिजम्पशन है ना। फिर पॉक्सो में क्या है, प्रिजम्पशन। और एक और बेनिफिट है पॉक्सो में, पॉक्सो के अंदर नीचे जाके हम जब प्रोविजंस पढ़ेंगे इसके, तो ये चाइल्ड फ्रेंडली प्रोविजंस है इसकी। क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली। पता क्या, जब ट्रायल होता है ना, तो जज साहब के सामने बयान करवाते हैं, जज साहब के सामने जाके रिकॉर्ड करवाते हैं स्टेटमेंट्स, तो वो बच्चा है। अब दूसरे ट्रायल देखोगे तो 2-2 साल 4-4 साल चलते हैं ट्रायल। यहाँ पर ट्रायल का सिर्फ 1 साल ही है। कितना टाइम दिया है, 1 year में ट्रायल कंप्लीट करो, उसको क्या करो, सजा करो। बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है सर, 30 days का टाइम दे रखा है। कितना,
30 डेज। जब बच्चा गवाही देने आएगा तो हमारे बीएनएसएस के अंदर और सीआरपीसी के अंदर ये फंडामेंटल रूल है, जब भी बच्चा गवाही देने आता है ना, बच्चा या कोई भी विक्टिम, जब भी एक्यूज के खिलाफ कोई बयान या कोई एविडेंस होने हैं, एक्यूज का प्रेजेंस होना जरूरी है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्यों? जैसे सपोज मेरे ऊपर एक्यूजेशन है, अब आप मेरी पीठ पीछे जितने मर्जी मेरे खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड कर लो, मेरे को बुलाओ ही ना कोर्ट में और बोलो देख तेरे खिलाफ ये सारा कुछ है, चल जेल, तेरे को फांसी लटका दे, मैं बोलूंगा ये तो नेचुरल जस्टिस की वायलेशन है। मेरे खिलाफ एविडेंस ले, मेरे को तो सामने, ताकि मैं रिबट करूं उसको, ताकि मैं उसको क्रॉस एग्जामिन करूं कि बता, बोलो ये ऐसा और ना। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, जब भी कोई एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं तो एक्यूज का सामने होना जरूरी है। बट द पॉइंट इज, यहाँ पर तो चाइल्ड है, और चाइल्ड जब अपने उस पर्सन को देखेगा तो पहले ट्रॉमा फेस किया, अब दोबारा उसको देखेगा तो ट्रॉमा नहीं हो जाएगा उसको? तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी बच्चे की स्टेटमेंट लेनी है तो बीच में एक पर्दा खड़ा करना पड़ेगा आपको। क्या खड़ा करना पड़ेगा? एक, हाँ, वो ऐसा, ऐसे मिरर होते हैं जिसकी मतलब बच्चा उधर की तरफ नहीं दे सकते, उधर से इधर देख सकते हैं। आगे बात समझ या नहीं? तो ये चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर है इसका। तो मुझे बताओ, अगर यही लड़की, अब इन्होंने इन्होंने बोला सर आईपीसी लग तो रहा है, इनके मन में ये क्वेश्चन था, फिर फर्क क्या पड़ गया? तो मैं बता रहा हूँ फर्क है, इसमें चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर है। तो उस लेडी वो है, तो उसका मेंटल एज कितनी, 6 से 8, तो फिर उसको ये फायदा मिल जाता कि नहीं मिलता? ऑल्दो नहीं मिला, वो बात अलग है। चलिए आगे चले। सेक्सुअल हरासमेंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफेंस, सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट में टच नहीं है। सेक्सुअल असॉल्ट में क्या था? फिजिकल टच, पेनिट्रेशन नहीं थी। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, ठीक है, वर्बली या जेस्चर या कुछ ऐसे पेंटिंग या ड्राइंग करके दिखाइए आपने कुछ बच्चे को, तो वो आएगा इसके अंदर। A person is said to commit sexual harassment. वो क्या है? Sexual harassment upon a child when such a person with a यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्या है, साथ में क्या प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये जो इसने काम किया सेक्सुअल इंटेंट के साथ किया है। तो ऊपर भी सेक्सुअल इंटेंट प्रूव करनी थी, यहाँ पर भी प्रूव करनी पड़ेगी, ऑल्दो प्रिजम्पशन है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखिए, अटर्स क्या लिखा है यहाँ पर? अटर्स यानी यहाँ पर क्या कर रहा है वो बंदा, परपिट्रेटर, वर्ड बोल रहा है कुछ, या फिर मेक्स एनी साउंड, या फिर मेक्स एनी इशारा, इशारे करने, साउंड, वर्ड्स, या फिर एग्जिबिट एनी, या कोई कुछ निकाल के दिखाया बच्चे को, कुछ भी ऐसा। और क्या लिखा है? और पार्ट ऑफ बॉडी, या बॉडी पार्ट से जेस्चर करा, बॉडी पार्ट से कोई ऐसा जेस्चर करके दिखाया बच्चे को, विद द इंटेंशन दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, और उसकी इंटेंशन थी जो मैं वर्ड बोल रहा हूं इसको सुने। एक होता है कि कान में बोल रहा है कोई किसी के, मान लो उस बच्चे के कान ही इतने तेज है उसने सुन लिया, वहां पर उसकी इंटेंशन उसको सुनाने की नहीं है, मान लो जोर से बोल रहा है, फिर तो शरेआम ही हो गया कि ये इसको सुनाना चाहता था, ये उसको दिखाना चाहता था। शैल बी हर्ड और सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन, और बॉडी शैल बी सीन बाय द चाइल्ड। तो दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, एक तो इसने जो इशारा किया है सेक्सुअल इंटेंट के साथ किया है, दूसरा इसकी इंटेंशन थी कि ये इशारा वो देखे या ये वर्ड वो सुने। आई बात समझ या नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों को, जाते जाते बच्चा जा रहा है घर, 16 ईयर 17 ईयर का बच्चा घर जा रहा है, तो रास्ते में उसको एवं कमेंट पास करते रहना, एवं कोई ना कोई वर्ड्स बोलते रहना विद सेक्सुअल इंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस आया था अभी रिसेंटली, एक केस आया था कि क्या, ये नहीं था मतलब सेक्सुअल हरासमेंट तो नहीं था, बट इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन जो मैंने आपको लिखवाया वो सेम ही है ना ऐसा। इंसल्टिंग में भी क्या करना है? वर्ड्स, ल्यूड रिमार्क्स, ल्यूड रिमार्क्स समझते हो आप? ल्यूड रिमार्क्स वो पास करने। तो अभी रिसेंट एक केस आया था कि आई लव यू बोलना क्या इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन में होगा? नो, क्योंकि मॉडेस्टी इज रिलेटेड टू व्हाट? विद द फीमेल सेक्स। तो अगर किसी को आई लव यू बोल देना, डू यू थिंक इट वायलेट्स हर मॉडेस्टी? देन मॉडेस्टी तो नथिंग, नथिंग, इट इज नॉट अ क्राइम। किसी को आई लव यू बोलना इट्स नॉट अ क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर utters any word, sound, gesture, exhibits any object part of the body, तो यहाँ पर दिखाना है, ये चीजें दिखाना, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाएगा। और मेक्स अ चाइल्ड, या बच्चे की बॉडी पार्ट, बच्चे का ही बॉडी पार्ट एग्जिबिट करवाना, बच्चे को बोलना कि तू दिखा, और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी as seen by such person और विद अदर पर्सन, या फिर shows any object to child in the form और मीडिया ऑफ पोर्नोग्राफी, बच्चे को दिखाना, बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाना, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचिंग, बच्चे का पीछा करना, ये भी क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट। बट ये उसका पीछा करना, पर मान लो कि वो तो बेचारा ये देख रहा था कि इस बच्चे के ऊपर ना कोई किडनैपर्स खतरा है, वो उसका पीछा कर रहा था, तो उसको नहीं डालोगे, क्योंकि यहाँ पर शो करना पड़ेगा विद सेक्सुअल इंटेंट, है ना। तो यहाँ पर लिखा है
रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज द चाइल्ड, वॉचेस, बार बार देख ही जाना बच्चे को, या फिर कॉन्टेक्ट से चाइल्ड, बार बार उसको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करना, इधर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, बार बार ईमेल या बार बार फेसबुक रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट, डिजिटल और एनी अदर मीन्स। ये क्या है सारा कुछ? ये है सेक्सुअल हैरेसमेंट। या फिर बच्चे को धमकी देना कि हम किसी भी मीडिया के अंदर तेरी फैब्रिकेटेड डिपिक्शन या रियल डिपिक्शन दिखा देंगे। अब आजकल डीप फेक्स आ गए, बच्चे की गर्दन काट के और दूसरे पे चिपका दी और बना दी ऐसे, बना अब एआई कितना आ गया वो। तो उसको धमकी देना कि तेरी रियल फोटो या तेरी फैब्रिकेटेड फोटो हम तेरी दिखाएंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिजिटल, ये भी क्या माना जाएगा? सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। या फिर बच्चे को ऐसा कुछ सेक्सुअल एक्ट में दिखा देना, उसकी फोटो ऐसे बनाकर, ये भी क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो या फिर एंटाइसेस द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, या बच्चे को एंटाइस करना कि वो क्या किस में इन्वॉल्व हो जाए, पोर्नोग्राफिक पर्पस, उसको लालच देना या कुछ ऐसा करना, वो भी क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये ऑफेंसेस हमारे खत्म होते हैं, बट एक ना यहाँ पर बहुत ही अजीब सी एक वो आई थी जजमेंट, आपको मैं बताता हूँ। वो जजमेंट थी हमारी यहाँ पर इसको लेकर, सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है फिजिकल कांटेक्ट, है ना, और यहाँ पर लिखा है टचिंग द ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड। एक पर्सन ने एक माइनर गर्ल की 16 या 17 है, उसकी ब्रेस्ट को टच किया। ठीक है, केस आया, तो उसने बोला कि दैट ही दिस पर्सन ग्रॉब द ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, तो दिस इज सेक्सुअल असॉल्ट। तो हुआ क्या कि अ, ये हुआ कि महाराष्ट्र का केस है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज, आई थिंक पुष्पा गनेडी वाला था उनका नाम, नाउ शी इज नॉट नो मोर इन द सर्विस, नो मोर इन द सर्विस, उनको आई थिंक रिजाइन करना पड़ गया था। तो उन्होंने जजमेंट दी कि यहाँ पर क्या लिखा है? फिजिकल कांटेक्ट, क्या लिखा है यहाँ पर? तो उन्होंने बोला अगर हैंड्स और उस बच्चे ने कपड़े ना डाले हों फिर ये ऑफेंस बनेगा, बट उसने क्योंकि कपड़ों के ऊपर से ऐसा किया है, वो ऑफेंस नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत वो जजमेंट रोकी, उन्होंने रिवर्स किया। ये कौन सा रेडिकुलस जजमेंट दी है कि कब विदाउट, क्योंकि उन्होंने बोला फिजिकल कांटेक्ट क्या है, क्या चाहिए? उन्होंने बोला फिजिकल कांटेक्ट तो ऐसे स्किन टू स्किन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये जजमेंट आई थी, इसको बोलते स्किन टू स्किन कांटेक्ट जजमेंट। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो रिवर्स कर दी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसमें शी वाज मेड टू रिजाइन, was made to resign। देन देन हो गया, एंड देन ये फिर हमारा जो ये नेक्स्ट है, ये हमारे चैप्टर नंबर 3, यूजिंग चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड पनिशमेंट देयर ऑफ। इसको भी दो ही रह गए, दो खत्म कर लो, देन इट्स ओवर। देन यहाँ पर है यूज अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, ये भी ऑफेंस है। अच्छा, उसकी सजा देख लिया आपने सेक्सुअल हरासमेंट की? अपॉन अ चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू कितना है? 3 इयर्स। हरासमेंट करने पे भी 3 साल है, एंड शैल बी लायबल टू फाइन। Then use of the child for pornographic purposes, whoever uses a child in any form of media। तो अगर किसी बच्चे को आप यूज करते हो पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए, किसी एडवर्टीजमेंट में, किसी टेलीविजन चैनल में, या उसको पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज करते हो, देन इट इज एन ऑफेंस। ठीक है, बच्चे को पोर्नोग्राफी पर्पस यूज करना वो ऑफेंस है। रिप्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट किया या फिर बच्चे को शो करा है, एंगेज इन सिमुलेटेड आल्सो, नॉट रियल, क्या है? सिमुलेटेड। सिमुलेटेड मतलब चाहे नकली दिखाकर आपने दिखाया बच्चे को, पोर्नोग्राफी ऐसा कोई वो बना दिया आपने, विद और विदाउट पेनिट्रेशन डजंट मैटर, वो भी क्या है? ऑफेंस, इसी में फॉल करेगा। देन द इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड, ऐसी कोई पिक्स उसकी दिखाई है इसमें मीडिया में या कुछ ऐसे, शैल बी गिल्टी ऑफ दिस। ठीक है, तो इसकी सजा कितनी है देख सकते हो आप, कितनी सजा है? 5 years। कितना है? मे एक्सटेंड टू 5 years, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सेकेंड इम्प्रिजनमेंट के अंदर कम से कम 7 years तक एक्सटेंड हो सकती है। ये कुछ और है, मतलब सेक्शन क्लॉज 2, ये 3, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि बच्चे से पोर्नोग्राफी भी कराई और खुद भी इन्वॉल्व हुए बच्चे के साथ, पोर्नोग्राफी भी रिकॉर्ड करी और खुद भी इन्वॉल्व हुए। तो खुद इन्वॉल्व हुए थे तो फिर वो वाला ऑफेंस किया होगा ना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया होगा। तो फिर वो कह रहे हैं पोर्नोग्राफी के लिए जो तो सजा मिलेगी मिलेगी, और जो वो ऑफेंस किया साथ में उसके लिए भी अलग से सजा मिलेगी, जो वो सजा ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, दोनों सजा मिलेगी। देन लास्ट इज, यहाँ पर पढ़िए प्लीज, क्या लिखा है यहाँ पर? पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ अ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ, ये सबसे मतलब कह लूं कि लोगों को शायद नहीं पता इसके बारे में, ये है एनी पर्सन हु स्टोर्स फॉर फॉर हु स्टोर्स फॉर कमर्शियल पर्पस
ये ना गलत है, यहाँ पर ना एक्चुअली 3 तरह के ऑफेंस है, यहाँ पर चेंज हो गया था ये, तो ऐसे करेंगे, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बोल के तो नहीं करवा सकता, इसके 3 पार्ट्स हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं जजमेंट इसकी निकाली हुई है। देखो, knowingly watching child pornography over internet without downloading amounts to, क्या बोला कोर्ट ने? डाउनलोड नहीं भी किया, फिर भी क्या माना है कोर्ट? मोबाइल में, वो बोलेगा सर मेरे तो कहाँ है, मैंने तो डाउनलोड भी नहीं करी, ऑनलाइन भी वॉच कर रहे थे देन, और विदाउट डाउनलोडिंग, और अगर ऐसा मतलब किसी ने पकड़ लिया या कुछ हो गया, तो इट अमाउंट्स टू पोजेशन, इट इज एन ऑफेंस, ऑफेंस है। और किसी ने लिंक भेज दिया, उसके ऊपर भी कल हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर, ये इस जजमेंट का नाम हम पढ़ेंगे, इस जजमेंट का नेम है, आप देखना चाहते, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है ये, इस जजमेंट का नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस हरीश, ठीक है? तो इसके अंदर पढ़ेंगे कल यही है, बस छोटा सा ही है हमारा। कल आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्लास, कल मैथ्स की क्लास ही होगी आपकी, एंड इंग्लिश की, बिकॉज मैंने आपको बताया था, अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? अभी मैं 1 मिनट बताता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि ठीक है, दैट्स इट, ये तो एक बार बंद करते हैं, फिर बातचीत करते हैं।